Hello, in this lecture we will study about the internal resistance of battery and the potential difference across the terminal of the battery in case of charging and discharging. Now suppose we have a battery and this is a battery and having two terminals, positive and negative, and suppose these two terminals are connected through some wire and I current is flowing in the circuit, and suppose I is the current. So in time t, the total charge flowing in this circuit will be equal to I into t. Now if EMF is the EMF of this battery and V is the potential difference. Now we know potential difference and EMF basically these are two different things. This is because of the internal mechanism of the battery, and this is basically because of the separation of the charges. So V and E. Now when positive charge is going from this side to this side, so work will be done on the positive charge because of the mechanism of the battery, and that force per unit charge is E, and therefore if Q charge goes from this side to this side, total work done will be equal to Q into E, and that is equal to E into I into T. And when charge goes from this side, the potential increases and therefore potential energy increases. So in this case, increase in the potential energy is equal to V into I into V into Q basically, and Q we know is equal to I into T. If there is no loss in between these two terminal and there is no resistance, then this EIT must be equal to VIT, or E is equal to V. So we can say, in case if there is no internal resistance of the battery, this EMF of the battery will be equal to the potential difference. But this is ideal situation. This is an ideal situation. In actual practice, this battery will be always having some resistance. Now, what will be the cause of this resistance? तो सबसे पहले हम इसके कॉज को जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉज क्या है. एक्चुअली इन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रो वी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है, और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो देर विल बी सम कोलिजन बिटवीन दिस चार्ज एंड आयंस. ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो कोलिजन आएंगे, बिकॉज ऑफ दोज कोलिजन देर विल बी सम रेजिस्टेंस to the flow of the charge. That will be the cause of the resistance, number one thing. And this resistance depend upon certain factor. This will depend upon the distance between these two electrodes, क्योंकि जितना ज़्यादा distance होगा उतने ज़्यादा collision होंगे. इसका मतलब ये जो इनके बीच में resistance आएगा, internal resistance, that will be proportional to, and normally we represent this by small r, and this is proportional to D. And this will certainly depend upon the nature of this electrolyte. ये जो बीच में इसके भरा हुआ है, इसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा. और तीसरा, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. और एंड फोर्थ, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विच आर इमर्स्ड इन द फ्लूइड और इन द इलेक्ट्रोलाइट. इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इनका एरिया अंदर आएगा, उस एरिया पे भी डिपेंड करेगा. तो ये कुछ फैक्टर हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो चार फैक्टर बेसिकली मैंने बताया आपको जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा. अब अगर मान लो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, वी हैव टू नाउ फाइंड आउट. नाउ सपोज इफ़ वी आर ड्राइंग करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब यहाँ से हम पॉजिटिव करंट ये करंट ड्रॉ कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इनसाइड द बैटरी करंट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ से जा रहा है. तो इन दिस केस इफ आई से वर्क डन बाय द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बैटरी इन टेकिंग दिस क्यू चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू E इंटू क्यू, एंड विच वॉज इक्वल टू E इंटू I इंटू T, वी कैन से, राइट. नाउ दिस वर्क E into I into T will be used to increase the potential energy of the charge.
because when it is taken from this end to this end charge, the potential energy is increasing. V into I into T is the increase in the potential energy, and since there is some resistance in this, so some work will be done against this resistance, and this will be now generating heat in the resistance. So as we have studied earlier that the heat produced in the resistance is given by I square R into T, because I square R is the power consumed or heat produced in T time, the total heat produced will be equal to this. So we can say this is I square R into T. Now you cancel this T with T and with T, and I and this I and this I. So in this case this E will be equal to V plus IR, and if we write V, this will be equal to I into R. So when we take current out from this is the case of discharging a battery. ठीक है, जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ड्रॉ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और बैटरी के डिस्चार्जिंग के केस में हम बोलते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम हो जाएगा EMF से, क्योंकि E माइनस आई आर है। ठीक है, और इसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते R0, इफ़ देर इज़ नो रेजिस्टेंस देन V विल बी इक्वल टू E, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। तो दिस इज़ द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। डिस्चार्जिंग में हमेशा आप पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे किसी बैटरी के क्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू E माइनस आई आर। तो अब इसी के साथ दूसरा केस भी है चार्जिंग ऑफ बैटरी में। चार्जिंग ऑफ बैटरी में हमेशा क्या होता है कि करंट जो है वो यहाँ से उल्टा जाएगा, करंट जो है वो इसमें उल्टा जाएगा, ऐसे जाएगा करंट और इधर से बाहर निकलेगा। अब आप सोच सकते हो कि ये कैसे होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि इसके लिए हम एक पावरफुल बैटरी और लगाते हैं यहाँ पे। अगर मान लो ये आपके पास 10 वोल्ट की सपोज कर लो, तो ये अगर हम 15 वोल्ट के लगाएंगे तो चार्ज इधर से उल्टा फ्लो करने लग जाएगा। तो जब इसके अंदर चार्ज जाएगा तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बैटरी। नाउ करंट इज़ गोइंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो जब ये चार्ज यहाँ से जाएगा, इट विल बी गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। सो व्हेन इट गोज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट विल बी लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर क्यू इसमें आई चार्ज था तो अगेन द चार्ज वॉज आई इंटू टी। इफ़ आई इज़ द करंट देन द चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो इसमें से जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो इसने टोटल पोटेंशियल एनर्जी लूज़ की V इंटू आई इंटू टी। अब इससे हुआ क्या, ये जो एनर्जी थी बेसिकली वो चार्ज को यहाँ भेजने में यूज़ होनी थी। अब उसमें दो काम हुए, एक तो जो ये बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म फोर्स लगा रहा था इधर, उसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इनके बीच में EMF थी, तो यहाँ से यहाँ लाने में उसको काम करना पड़ा था E। तो बेसिकली जब उधर जाएगा, एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे जो Q चार्ज इधर मूव करते हैं उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बैटरी FB। उसके ऊपर FB फोर्स लगती है और D डिस्टेंस के लिए वो काम करना पड़ रहा था D। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब वो फोर्स, क्योंकि आपने चार्ज को उधर भेजना है तो फोर्स उसके ऊपर इधर लग रही है, तो आप उस फोर्स के बराबर फोर्स उधर लगाते हैं FB। ठीक है, और आपने डिस्टेंस मूव किया, तो टोटल वर्क कितना किया FB इंटू D। पर यूनिट चार्ज कितना किया, Q से डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू E। तो इसका मतलब क्या है कि FBD बाई Q दिस इज इक्वल टू E। इट मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क टू सेंड दिस चार्ज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ हुई थी उसमें से कुछ काम हमने इस चार्ज को भेजने में यूज़ कर लिया। वो काम कितना आया, E इंटू आई इंटू टी, बिकॉज E जो वर्क था दैट वाज द वर्क पर यूनिट चार्ज, और टोटल चार्ज हमने भेजा IT, तो टोटल वर्क हो गया E इंटू आई इंटू टी। इसके अलावा व्हेन चार्ज गोज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, some heat is also produced, and heat produced in the resistor is also equal to
I square R into T। तो आपको पता है चाहे चार्ज इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, इन बोथ द केसेस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे हम रोड पे इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि चार्ज चाहे इधर से जाए इधर, चाहे इधर से इधर जाए, इन बोथ द केसेस some heat will be produced. Now again you cut I with I, T, and this will be equal to E plus IR. So in this case, in case of charging of battery, potential difference is equal to E plus IR. Whereas in case of discharging, it was V is equal to E minus IR. So these are two very important relations. You always remember, in case of charging, this is the relation, and in case of discharging, this is the relation. Thank you.